मैम और कोई ज्वाइन करेंगे, स्टार्ट करें? ओके। ओके। Good afternoon, everyone. In the previous class, we studied till the concept of iterations, that is looping. तीन तरह का लूप होता है, while do while for loop, syntax देखे थे उसका, और कुछ examples basic सा देखे थे. We were also supposed to deal with some special kind Good of afternoon, numbers. sir. Yes, good afternoon, Ashi. Uh, some special kind of numbers like, let's say, strong number, Armstrong number, magic number, perfect number. Okay. Uh, let's take an example. Okay, it's not possible to take each and every special numbers and deal with them. So we'll take few of them. Okay. First of all, let's say, okay, before we proceed to that part, we'll have to find out a few things. Like in the previous class, we understood how to reverse a number. Reverse के लिए formula था. Similar to that, uh, if I need to calculate the factorial of a number, okay. So factorial is a mathematical term where and it's different and then calculating the factors of a number. Factorial is, let's say a number has been given n and we need to calculate its factorial. This is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into, and it will keep on decreasing by the time we reach 3 into 2 into 1, right? So starting from the given number, keep on multiplying and reducing the number till you reach 1. Or you may say that starting from 1, keep on increasing the value and multiplying the values till the value you reach. Okay, जो हम लोग को असाइन किया गया है. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास लेट से 6 का फैक्टोरियल निकालने बोला है, इसका मतलब है आई नीड टू 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? The product of each number multiplied starting from the number itself and decreasing in a decreasing order, 6 5 4 3 2 1 and so on. या 1 से स्टार्ट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस नंबर तक मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर. ओके, तो बहुत बेसिक सा है. नाउ based on that, let's say two questions. First one is Armstrong number. Okay, Armstrong number. What is an Armstrong number? So number is said to be Armstrong if a number is said to be Armstrong if the, just hold on, it's not visible. Okay, yeah. So a number is said to be Armstrong if the sum of product of each digit is equal to the number itself.
ठीक है. Sorry, if the sum of cube of each digit provided that the number is a three-digit number, okay, then the number is said to be Armstrong. For example, usually we take into consideration a number, let's say 371. Hope I'm correct in number. Uh, so this is a three-digit number. If I take the cube of each digit, cube of three, how do I write? 3 raised to 3 plus 7 raised to 3 plus 1 raised to 3. So 3 to the power 3 is how much? 27. 7 का cube I think 340 होता है and 1 का cube 1 होगा. मैंने calculated. तो अगर मैं इसका समेशन निकाल रहे हैं वापस से 371 हमें मिल रहा है. So yes, we can say that this specific number is an Armstrong number. इसका डेफिनेशन कई बार इंटरनेट पे हम लोग देखते हैं तो सिंपली सिंपली बोल देता है कि सम ऑफ cube of each digit is equal to the number itself, then it is said to be Armstrong number. No, it is not the correct definition. Correct definition is, first of all, you need to calculate how many digits are there. If it is a three-digit number, then only you will take it to the power 3. If it is a four-digit number, it will be raised to the power 4. If it is a two-digit number, it will be raised to the power 2. So first of all, for every Armstrong number to calculate, we need to compute or we need to count how many digits are there. This is the first rule. Once the digits are counted, each digit will be raised to the count of the number of digits and the value will be added for each digit. If the final summation is equal to the original number, then only you will say that the given number is Armstrong number. तो इसका डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे. Number is said to be if the sum of each digit raised to the power of the total count total count of the number is said to be Armstrong if the sum of each digit raised to the power of the count of digits is equal to the number itself. Okay. Example वहाँ पे दिया हुआ. If you want, you can take a screenshot of this. Right. So for this example, for this specific number, हमारा जो अगर एक एल्गोरिथम डिजाइन कर ले या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होगा, तो हमारा सबसे पहला चीज क्या होगा? वी नीड टू इनपुट अ नंबर, इनपुट अ वैल्यू. ओके. सेकेंड थिंग क्या करना है? काउंट द डिजिट्स. काउंट द डिजिट्स. नाउ रन अ लूप. रन अ लूप. Inside this loop we'll have 3.1, let's say. Extract each digit extract each digit raise the digit
to the power of total count of digits sum the result for each digit. Okay. Once we come out of the loop, compare the original value to the sum. That's it. अगर ट्रू होगा लास्ट वाला स्टेप तो हम प्रिंट करेंगे कि यस गिवन नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, और अगर नहीं होगा तो प्रिंट कर देंगे इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ये तो एक पहलू होगी जहां पे हम यूजर से एक नंबर इनपुट करा रहे हैं और वो जैसे ही वैल्यू डालता है उसके बेसिस पे इवेलुएट करने के बाद सिस्टम जो है या कोड जो है वो रिजल्ट दे देगा कि गिवन नंबर जो है आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू क्या हो जाता है, बोलता है कि 1 से लेके 1000 तक में या 1 से लेके 2000 तक में, 100 से 200 तक में, ऐसे एक रेंज दे देता है। बोलता है इसमें कौन कौन से नंबर्स या कितने नंबर्स आर्मस्ट्रांग है ये बता दो। ठीक है, दो एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ। पहला में क्या है कि एक नंबर इनपुट करा रहे हैं और यूजर को बोल रहे हैं कि चेक करो ये नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं। सिस्टम हमारे बिहाफ में चेक करके बता देगा। दूसरा है, बोल रहा है कि प्रिंट दोज नंबर्स विच आर आर्मस्ट्रांग फ्रॉम 1 to 1000, या काउंट द नंबर्स ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक नंबर को स्पेसिफिकली चेक कर रहे हैं। वहां पे हम 1 से लेके 2 3 4 5 1000 1000 verify each such value is stored, and any of those values are it has to be printed। जैसे एक आगे और नंबर भी मिलता हो, I think ये वाला समझते हैं। So I have given you the definition, I have given you an example number which is said to be Armstrong, I have also given you the steps। यहाँ तक में कोई डाउट है? एनीबडी बी क्विक, ताकि हम लोग आगे बढ़ जाए, इस पे इसको सॉल्व करेंगे। Actually, shall we start it coding, Pritam? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's start with the coding. We'll start with, okay, one more thing I forgot in the meantime. यूजर से जब इनपुट लेना रहता है हमें जावा में, there are two ways to take input from the user. First is using a scanner class and second is using the buffer reader class or the stream reader class। ठीक है, दो तरह टेक्निक है। कॉमनली हम लोग स्कैनर क्लास यूज करते हैं। किसी को जरूरत लगता है तो वो स्ट्रीम रीडर भी यूज कर लेता है, बट generally prefer the use of scanner class. Why? Because it is much simpler as compared to stream readers। Secondly, uh, while using scanner class I don't have to take the use of exception handling। जहाँ पे हम स्ट्रीम रीडर पे एक्सेप्शंस के बारे में यूज करते हैं, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन एक लिखा जाता है, तो वहाँ पे एक का केस safer side much better, but for the convenience of the programmers, because हम लोग बहुत complicated programs भी नहीं बना। I know कि हमें एक ऐसा safe program बना रहे जैसे exceptions generate हो जाए, ऐसा कोई possibility नहीं है दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन के साथ काम नहीं कर रहे होंगे या जीरो इन्वॉल्व नहीं कर रहे होंगे, डिवीजन बाय जीरो या मेमोरी ऑक्यूपेंसी वाला कोई काम नहीं है, तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बट ऑन अ सेफर साइड
यस, इफ यू वांट कि हाँ मेरे प्रोग्राम में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, एक्सेप्शन अराइज होने का चांसेस है, देन देयर यू may यूज बफर रीडर स्ट्रीम रीडर क्लास. ओके, तो import java dot util dot star. There are two ways to write the import class. First is import java dot util dot star. Another one is I need to write specifically this. ठीक है, 2 मिनट देते हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है. For my given program, I need to import. I'm importing a specific class. For this program, I'm importing scanner class. Okay, why I'm importing scanner class? Because I need to take input. और scanner class की मदद से हम लोग import या input ले पाते हैं. So I'm importing scanner class, which is available where it is available inside the util package or utility package. Now, what is a package? Package को simple terms में अगर बोला जाए तो it's like the folders that you save on your computer, on your laptop, on your mobile. आप एक फोल्डर का कॉन्सेप्ट जो समझ रहे हो, यूटिल पैकेज वही चीज है. आपने फोल्डर का नाम बना दिया होगा फिल्म, सॉन्ग, इमेज. उसी तरह से एक फोल्डर, एक पैकेज बन रहा है जिसका नाम यूटिल है, जो कि कहाँ पाया जा रहा है, विच इज फाउंड इनसाइड द जावा लैंग्वेज. So larger set is Java language. Inside it, we have a util subset that is a folder. Similar to util, we might be having few more or a larger number of folders, also known as packages, containers. And inside that util package, one specific class is there, scanner, which I'm using for this program. Instead of writing this particular class, I may also write star symbol, which means I'm importing all the classes which are available inside the util package, which is available inside Java language. तो स्टार का मतलब हो गया importing all the classes residing inside that package. और अगर आपको स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट करना है या उसका नाम पता है, आप स्पेसिफिक क्लास का नाम लिख दो. इन आवर एग्जांपल आई रोट स्कैनर विद a capital S. ठीक है, so this is how we start the import part or creating the package from where we are importing the uh, functionalities through which we will be taking input from the user. Now, why importing is important? See, there are two types of functions available. Okay, two types of function, and इसको हम लोग next class में हम लोग आज की क्लास में कोशिश करेंगे टच डाउन करने का. Two types of functions are available. First one is library functions या inbuilt functions, predefined functions. Second one is user defined functions. लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है? वैसे फंक्शंस जिनका नाम और पर्पस, काम, सब कुछ वेल डिफाइंड पहले से जावा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में बसा हुआ है. एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन कॉल अ स्पेसिफिक फंक्शन इनटू योर प्रोग्राम. उसको जो वैल्यूज जिस तरह का चाहिए उस तरह का प्रोवाइड कर दोगे. सही तरीके से अगर यूज किया गया है तो वो अपने अकॉर्डेंस में रिजल्ट जनरेट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, उसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है मैथ डॉट एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट के लिए, मैथ डॉट सी बी आर टी क्यूब रूट के लिए. तो इफ आई प्रोवाइड अ करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, आई सिंपली यूज मैथ डॉट एस क्यू आर टी. बिकॉज फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट इज नॉट अ इजियर टास्क कि हम लोग वहां सिंपल सा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कोई ऑपरेशन करके इवैल्यूएट कर लेंगे. It needs some level of computation. पेन पेपर आप लेके बैठते हो, उस पे लिखते हो. It takes some time for us, even for a smaller value. बट अगर कोई लार्जर बड़ा वैल्यू अगर हमको मिल जाता है तो मैटर डिफिकल्ट हो, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. So for any kind of number,
स्क्वायर रूट निकालना है तो मैथमेटिकल फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है. Similar to that, for every string operation, string functions भरे पड़े हैं. How to calculate the length of a string, how to calculate the uh, vowels, characters, digits, everything for a given string. All those things, functions are available. Those are known as library functions. You just simply need to call these functions as and when required in a proper way, proper format. वो रिजल्ट जनरेट कर देगा. और अगर उसी चीज को अगर तुम मैनुअली अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते, लिखते पूरा डिराइव करके, तो शायद 10 15 20 25 लाइन शायद एक्स्ट्रा लग जाता के कोड में. उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इनबिल्ट फंक्शंस ले आए हैं. Similar to that, we have a lot of inbuilt functions for ले रहे होंगे. आइदर मेरा एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा या नॉन न्यूमेरिक होगा. जो स्टार्टिंग में पढ़े न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक टाइप का होगा. न्यूमेरिक है तो अगेन इन, फ्लोट, बाइट, कैर, सॉरी बाइट, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, इनमें से किसी में बिलोंग कर रहा होगा. और अगर नॉन न्यूमेरिक है तो या तो कैर होगा या बुलियन होगा. यही दो में से कुछ होगा. तो क्योंकि हमको यहाँ पे नंबर्स के साथ डील करना है तो मोस्ट लाइकली आई बी यूजिंग इंट, फ्लोट, डबल. इन तीनों में से कोई एक यूज कर रहा है प्रेफरेबली. नाउ सिंस वी आर डीलिंग विद कंप्यूटेशन ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पे लोग इंटीजर वैल्यूज को ही प्रेफर करते हैं, अवॉइड करते हैं नॉन इंटीजर टाइप के वैल्यूज को लेना. तो एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कराने के लिए हमको कौन सा फंक्शन चाहिए है, तो उसके रिगार्डिंग में स्कैनर क्लास में हमारे पास एक नेक्स्ट इंट फंक्शन आता है. जैसे इंट के लिए हम नेक्स्ट इंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, सिमिलर टू दैट फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट है, डबल के लिए नेक्स्ट डबल है. तो एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैज गॉट इट्स ओन इनबिल्ट फंक्शन फॉर टेकिंग इनपुट ऑफ दैट काइंड. फिर से बोल रहे हैं स्टेटमेंट, फॉर ईच each primitive data type has got its own inbuilt function by the help of which we can take input of that particular type. अब हम यहाँ पे प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, कुछ नंबर्स डिक्लेयर, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे. ठीक है. सो इंट एन नंबर इनपुट कराने के लिए ओके, नंबर इनपुट कराने के लिए काउंट करने के लिए इनिशियल वैल्यू लेंगे जो कि 0 से रहेगा, काउंटर वेरिएबल जैसा. एक एक्स लेंगे, एक डी ले लेते हैं डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट करने के लिए. आई थिंक दैट्स इट. और एक सम के लिए, या सम इक्वल्स 0. तो वेरिएबल्स का नेम बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है. हम लोग यूजुअली यही नाम, ऐसा ही नाम कुछ ले लेते हैं, बट प्रोग्राम्स अगर हम लोग सीरियसली अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग यूजुअली वैसा नाम चूज करना चाहते हैं अपने वेरिएबल्स का जो कि मीनिंगफुल हो टू विथ रिगार्ड टू द प्रोग्राम दैट वी आर डीलिंग विद. तो यहाँ पे सम ले रहे हैं, काउंट ले रहे हैं, नम ले रहे हैं, वैसा नाम है. जितना छोटा हम लोग रखना चाहते हैं प्रैक्टिस पर्पज के लिए उतना अच्छा रहता है. ओके. Next thing that I'll do is, because I'm using scanner class, so I need to create an object of the scanner class. Scanner ob equals new scanner system dot in. Okay, so this is a very interesting line. थोड़ा ध्यान से समझना क्या है. 2 times I've written scanner. Scanner, the class name. Okay, if you're having your pen and paper, kindly note it down also. It's very important. Scanner is the name of the class. OB is the name of the object of the class. हम लोग ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनाएंगे, क्लास का. एक बात इसको बस आप लोग याद रखिए तो बेहतर है. हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, क्लास का बना रहे हैं. ओके. ठीक है. तो हम ऑब्जेक्ट क्लास का बना रहे हैं. एक क्लास का कितना ऑब्जेक्ट बन सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है सर.
हम ऐसे करके हजारों लाइन लिख सकते थे, स्कैनर OB1, स्कैनर OB2, स्कैनर OBN, कुछ और नाम बदल लेते हैं, स्कैनर OBJ, OBJ2, ऑब्जेक्ट लिख सकते थे। तो नाम से कोई ये इशू नहीं है, ठीक है। जस्ट इंश्योर दैट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी ए कीवर्ड। आई कैन नॉट राइट स्कैनर इंट, आई कैन नॉट राइट स्कैनर स्ट्रिंग, आई कैन नॉट राइट स्कैनर class, because these are the keywords which we are using for some specific purposes. The scanner OB becomes the object of the scanner class. New is the keyword through which the object will be instantiated. Okay, and again scanner I have written, this is the constructor. कंस्ट्रक्टर के बारे में भी हम कुछ भी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, देन आई विल ट्राई टू डिस्क्लोज व्हाट कंस्ट्रक्टर इज। ओके, अभी आपको बस ये फॉर्मेट समझना है कि एक बार सबसे पहले हम लोगों ने क्लास नेम लिखा, ऑब्जेक्ट नेम हमारे हाथ में था, क्या बनाना है, I took OB as the object name equal to new keyword for instantiation of the object. Then again, the constructor name. Constructor name is always same as that of the class name. तो class name scanner था, इसीलिए constructor name भी scanner ही रहेगा. Then constructor has to be either parameterized or non-parameterized. Why are we writing this line? Because we need to take input from the user. So system.in, आपने देखा वो प्रिंट आउट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट कमांड हम लोग यूज करते थे। हमको इनपुट लेना है तो सिस्टम डॉट इन पैरामीटर से हम लोग इसको इनपुट करा लेंगे। ओके, नाउ द बेस इज सेटअप। हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रिवाइज कर ले रहे, हम लोगों ने पहले इंपोर्ट किया स्कैनर क्लास को, क्लास में इंपोर्ट करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अगेन, व्हाई डू वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि ऑब्जेक्ट क्यों नेसेसरी है। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन है, आंसर उसका इस रीजन से मिलता है कि करेंटली आई एम राइटिंग ए प्रोग्राम इनसाइड ए क्लास जिसका नाम मेन विथ कैपिटल M. नाउ ड्यू टू द रीजन दैट आई एम यूजिंग एन ऑनलाइन कंपाइलर, आई एम बाउंडेड बाय दैट नेम। ठीक है, ये मेरा बाउंडेशन है कि हम अपने क्लास का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मेरा रेस्ट्रिक्शन है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन एन ऑनलाइन कंपाइलर। अगर हम अपने खुद के सिस्टम, स्टैंडअलोन सिस्टम पे अगर काम कर रहे थे जिसमें मेरा JDK JRE सारा कुछ इंस्टॉल्ड होता, तो हम डेफिनेटली अपने क्लास का नाम कुछ और रख पाते हैं। क्लास का नाम हम शायद स्ट्रॉन्ग नंबर ही रख देते, टेस्ट रख देते, डेमो रख देते, इवेलुएट रख देते, या अपना ही नाम रख देते, राइट? So each one of you could have written your own class name, but because I'm using an online compiler, I'm having some restrictions, some foundation। उसमें से एक फाउंडेशन क्या, हम क्लास नेम अभी चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो इंपोर्ट किए हम लोग स्कैनर क्लास को यूटिल पैकेज के अंदर से, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। वाई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? बिकॉज करेंटली आई एम राइटिंग ए प्रोग्राम इनसाइड अ मेन क्लास। आप किसी एक क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। दिस इज द रूल व्हाट जावा स्टेट्स। क्या बोल रहा है रूल? किसी एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर, मेन इज द एग्जिस्टिंग क्लास जिसके अंदर काम हो रहा है, उस क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास, दूसरा क्लास कौन है? स्कैनर क्लास है दूसरा। तो अपने एक एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर आप किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे तब फिर? कैसे करेंगे उसको? तो हम लोग का सिंपल सा सॉल्यूशन क्या बोला जावा, आप ऑब्जेक्ट बना के यूज कर लो। तो फॉर एवरी एक्सटर्नल क्लास जो कि आप अपने प्रोग्राम में, अपने मेन सॉरी अपने क्लास के अंदर यूज कर रहे हो, आप उसका ऑब्जेक्ट बना लो। For that reason, we are creating the object of scanner class. Okay. अब हम लोग क्या करना, अभी तक हम लोग इनपुट तक पहुंचे ही नहीं है। Now I'll say, I'll give a print statement, system dot out dot println input a value, right? N equals, now
एंड इनपुट कैसे कराएंगे? सो इन दिस ऑर्डर, ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट INT फंक्शन, आई कैपिटल, नेक्स्ट इंट फंक्शन। जावा में बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, बहुत सिंपल सा रूल है कि आप अगर एक वर्ड यूज कर रहे हो जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, जैसे नेक्स्ट और इंट दो अलग अलग वर्ड है लेकिन इनको कंबाइन करके लिखना है, तो उसमें पहला वर्ड जैसा खत्म होता है, सेकेंड वर्ड का जो पहला लेटर होगा दैट विल ऑलवेज बी अ कैपिटल लेटर। ठीक है, जावा का सिंपल सा बहुत फंडामेंटल रूल है, और देखने से बोलने से समझ में आ जाता है कि अगर मेरे पास एक वर्ड है जो कि कॉम्बिनेशन है मल्टीपल वर्ड्स का, तो फर्स्ट वर्ड के बाद हर वर्ड का जो इनिशियल है वो कैपिटल लेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट इंट में आई बिकम्स द कैपिटल। तो एन को सिर्फ यूजर से इनपुट कराना था, आई टू इनपुट अ वैल्यू, एन का वैल्यू ओबी डॉट नेक्स्ट इंट करके डाल दिए है। तो जब कंपाइलर रन करेगा प्रोग्राम को, तो वहां पर हम लोग को रन टाइम पे पूछेगा इनपुट अ वैल्यू, तो फिर जो भी यूजर होगा उसके हाथ में होगा कि हम इसमें से क्या वैल्यू डालें। ठीक है, इन आवर केस बिकॉज वी नो दैट 371 इज सपोज टू गिव अस अ स्ट्रॉन्ग नंबर, तो फिर 371 लेकर के ही चलेंगे पहले, ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिले कि यह प्रोग्राम सही से रन किया। उसके बाद कुछ एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं हो नेचर में, ताकि हमको दोनों तरह का आंसर मिले, करेक्ट एज वेल एज इनकरेक्ट आंसर। सॉरी, नॉट द इनकरेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर फॉर करेक्ट इनपुट, और एक ऐसा इनपुट जो कि हमको आंसर नॉन आर्मस्ट्रॉन्ग टाइप का दे रहा हो, विच इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, उस टाइप का। ठीक है, तो करेक्ट नहीं बट डिफरेंट आंसर्स। Okay, just hold on for a moment. ओके, तो यहाँ तक इनपुट हो गया। अब हमारा एक्चुअल जो लॉजिक पे जो काम है वो स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो इट टुक अस ऑलमोस्ट अराउंड 30 मिनट्स, 25 मिनट्स टू गेट अप टू द बेसिक फाउंडेशन के इनपुट तक कैसे पहुंच रहे हैं। नाउ एक डुप्लीकेट हम लोग बना ले रहे हैं सेफ साइड, एंड आई विल गिव यू द रीजन व्हाई आई हैव क्रिएटेड अ डुप्लीकेट आल्सो। जस्ट जैसे हम नंबर इनपुट कराए, हम तुरंत से क्या कि इसका डुप्लीकेट एक बना लिए हैं। देयर इज अ स्ट्रांग रीजन व्हाई आई हैव डन, एटलीस्ट फॉर दिस एग्जांपल। Now, see, the number of digits is unknown for us. That's why I'm using while loop, isn't it? यूजर कितना डिजिट का नंबर ले रहा है हमें नहीं पता इनिशियल लेवल पे। हम लोग अपने सहूलियत के लिए चलो ये मान लें कि हम 371 डालने वाले, बट प्रोग्राम हम किसी को दे देंगे, आप में से किसी को, हाउ कुड आई ट्रस्ट कि आप 3 डिजिट का नंबर दे रहे हो या 5 डिजिट का दे रहे हो या 19 डिजिट का दे रहे हो। तो फॉर दैट अननोन क्वांटिटी हम यहाँ पे वाइल लूप लगा दे रहे हैं। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक हम लोग लूप चलाएंगे। लूप में क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है। ठीक है, अभी हमको सिर्फ डिजिट्स काउंट करना है, तो कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और काउंट बढ़ाते चले जाएंगे। तो सिंस द कंडीशन इज ट्रू, सी प्लस प्लस कर लेते हैं और n इक्वल टू n बाई 10 कर लेते हैं।
ठीक है। Now why this n by 10? सिंपल सा रूल है, हमको डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है और नेक्स्ट लूप में हमको डिजिट कम चाहिए। जब हम कर देंगे n इक्वल टू n बाई 10, मतलब कि 371/10, 371/10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? we'll get I think 37, then again n by 10 करेंगे तो we'll get 3, then again n by 10 करेंगे, 3 by 10 करेंगे तो we'll get 0। तो अल्टीमेटली n का वैल्यू जो है रिड्यूस होता चला जा रहा है। आई एम एक्सट्रैक्टिंग ईच डिजिट, आई एम रिड्यूसिंग ईच डिजिट। ओके, so for every time the value of n greater than 0 is true, 3 डिजिट है तो 3 बार लूप चलेगा, चौथी बार में फेल हो जाएगा। तो मेरा c का वैल्यू जो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 होकर के रुक जाएगा। सिंपल सा रूल है। ठीक है। सो नाउ आई हैव काउंटेड आउट माय डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर नाउ। इस बीच में क्या हुआ, ये n इक्वल टू n बाई 10 जो किए हैं, इससे एक डिमेरिट क्या हो गया है। अगर मेरे इनिशियल वैल्यू n का 371 हम लिए थे, ये 3 बार लूप चलने के बाद 371 घटते घटते 0 हो गया, है ना। 371 से 37, 37 से 3, 3 से 0 हो गया। n का वैल्यू मेरा चेंज होता चला गया जब जब ये लूप एग्जीक्यूट हुआ। एंड अल्टीमेटली इस लूप से हम कब बाहर निकलेंगे, जब n का वैल्यू 0 हो गया था, राइट। कंडीशन तभी फॉल्स हो रहा है। तो n का वैल्यू 0 हो गया, हम लूप से बाहर निकल गए। नाउ आई हैव लॉस्ट माय नंबर। जो यूजर ने जो ओरिजिनल नंबर, एक्चुअल नंबर जो इनपुट किया था, आई हैव लॉस्ट दैट नंबर। अब जब हम ओरिजिनल नंबर ही खो बैठे हैं तो हम कंपेयर किससे करेंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फॉर दैट रीजन आई हैव टेकन अ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, हमको क्योंकि लास्ट में क्या करना है, ओरिजिनल नंबर से अपने सम वाले नंबर को कंपेयर करना है। अब जब दोनों ही नंबर मेरे पास नहीं बचेगा, या दोनों में से एक भी अगर नहीं है, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन के लिए आई नीड, कंपैरिजन के लिए आई नीड बोथ द नंबर्स, ओरिजिनल वन आल्सो एंड द सम वन आल्सो। तो ओरिजिनल को हम कैसे मेंटेन करेंगे? अब ओरिजिनल को मेंटेन करने के लिए डुप्लीकेट तो ले लें, बट दैट सिंगल डुप्लीकेट इज नॉट सफिशिएंट एनफ। ठीक है, सिंगल डुप्लीकेट इज नॉट सफिशिएंट एनफ। आई नीड वन मोर डुप्लीकेट वैल्यू, बिकॉज हम दोबारा एक बार फिर से अभी लूप रन करने वाले हैं, और उसमें शायद हमको ये सेकेंड डुप्लीकेट या फर्स्ट डुप्लीकेट जो बचा है वो भी वैनिश होने वाला है। ओके, तो लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे ना हम अपने नंबर का एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं, और यहीं पे हम कर लेते हैं p इक्वल टू 2 बार कर लेते हैं। अब p यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ नहीं, तो यहाँ पे हम एक p भी बना लेते हैं। ठीक है, इतना कुछ हो गया। नाउ आई हैव टू वैल्यूज d एंड p, बोथ हैविंग द सेम वैल्यू दैट इज ऑफ n। और n का वैल्यू अभी इनिशियली मेरे पास 371 था, वाइल लूप के अंदर आया तो 371, अल्टीमेटली n का वैल्यू घटते घटते 0 हो गया, बाहर निकले। आई हैव द अपडेटेड वैल्यू ऑफ c as 3। नाउ while, once again I'll use while because I don't know c का वैल्यू क्या आया है, अगेन अननोन है। ठीक है, हम काउंट कर लिए, बट मेरे लिए तो अननोन है ना, हम कुछ रिवील नहीं किया क्या वैल्यू है। और अगर रिवील भी करते तो हम उसके हिसाब से कैसे चेंज करते? प्रोग्राम सी हम लोग प्रोग्राम में पहले बना लेते हैं, उस प्रोग्राम को सालों साल आप यूज करते हो, या कंसिस्टेंट लेवल पे डिफरेंट यूजर्स यूज करते रहते हैं। तो फॉर एवरी यूजर वी गेट डिफरेंट इनपुट, सब एक जैसा इनपुट तो नहीं देंगे। So I have to be, or the program has to be in such a way designed that it caters to all the values। 3 डिजिट है, 5 डिजिट है, 15 डिजिट है, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज। तो अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, while d is greater than 0, while d is greater than 0, अगेन डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से भी। I need to extract digits, so I'll do one thing.
x, I have taken x equal to d mod 10, d equals d by 10. So the thing is that we need to calculate the uh, sum of cube of each digit. Okay, this will be equal to sum plus cube of each digit. So each digit is extracted in x. I'll write math dot POW किसका निकाल रहे हैं हम लोग क्यूब यहाँ पे x रेज टू पावर कितना था हमारा c जो काउंट निकला हमारे पास x रेज टू c. ओके, so I have used a mathematical function. ठीक है, आपको अगर सी का वैल्यू पहले से पता होता है कांस्टेंट वैल्यू तो आप उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख देते. तो आई होप सो दिस वन इज डन. इस लूप से जब हम बाहर निकलेंगे तो सिंपली आई विल काउंट इफ सम इक्वल टू व्हाट वाज द इनिशियल वैल्यू. नाउ अगेन डी भी लॉस आउट हो गया यहाँ पे, पी बचा पी. दिस इज ट्रू सिंपली डॉट it is an number. ठीक है, इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. It is not an Armstrong number. Okay, I hope so this logic is correct. एक बार रन करके देख लेते हैं. Lossy conversion math dot pow system डबल टू इंट. ओके, मैथ डॉट पाओ जो हम लिए वो क्या करेगा हमारा डबल में दे दे रहा है हमारा रिजल्ट. ठीक है, इसको हमको इंट में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा. सिंपली राइट टाइप कास्टिंग कर देंगे यहाँ पे इंट इनसाइड दिस ब्रैकेट. ठीक है, अब जो भी रिजल्ट ये मैथ डॉट पाओ हमको देगा वो इंट में कन्वर्ट होकर मिलेगा. ठीक है, सॉर्ट आउट हो गया, छोटा सा बग था. 371 राइट, ट्रू देना चाहिए. इट इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, इट इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर. सी कंडीशन इज ट्रू. दोबारा रन करते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि एक आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है. 372 ही ले लेते हैं आसपास का. इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर. प्रोग्राम इज वर्किंग परफेक्टली ऑलराइट. अगर आपको कोई और नंबर पता है जो कि आर्मस्ट्रांग होता है, इट कुड बी 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, प्लीज टेल अस. हम उस नंबर को भी टेस्ट कर लेंगे. आप गूगल करके देख लीजिए कोई नंबर ऐसा है जो आर्मस्ट्रांग नंबर है एक्सेप्ट 371, तो उस नंबर को भी हम टेस्ट कर लेंगे. 153. 153. ओके, 153. वेरी गुड. ठीक है, so this is how we are calculating. Just
So what I'll do is right now I'll share the code with all of you. आप लोग अपने सिस्टम पे भी टेस्ट करके देखिए. ट्राई टू मिनिमाइज, अगर कहीं से पॉसिबिलिटी है कि इसको और हम मिनिमाइज कर सकते हैं और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं या कुछ और ऑल्टरनेट वेज में हम इसको कर सकते हैं, दैट विल बी द मच बेटर थिंग टू डू. आई शेयर इट विथ मैम. मैम आप लोगों तक फॉरवर्ड कर देंगी. ओके, ठीक है. तो ये रहा हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. उसी तरह से एक आता है स्ट्रॉन्ग नंबर. स्ट्रॉन्ग नंबर क्या बोलता है? A number is said to be strong if the sum of factorial of each digit is equal to the number itself. Sum of factorial of each digit. इसका एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं. आई थिंक 145. आई थिंक 145 में हो जाएगा या 154, दोनों में से एक नंबर लेते हैं. 145. तो 1 का फैक्टोरियल निकाल लो आप, 4 का फैक्टोरियल निकाल लो आप, 5 का फैक्टोरियल निकाल लो आप. ठीक है, इनको सम कर देते हैं. अगर वापस से हमको 145 ही मिल रहा है जो कि इनपुट में हम दिए थे, तो दैट नंबर इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज इट वोंट बी कैलकुलेटेड एज अ स्ट्रॉन्ग नंबर. 1 का फैक्टोरियल 1 ही मिलेगा. 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12, 12 2 24, 24, एंड 5 का फैक्टोरियल इज 120. तो 120 प्लस 24 इज 144, प्लस 1 इज 145. तो 145 अगर हम इनपुट में दे रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, आंसर विल बी यस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर. वाई? 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल विल गिव यू 145. लेकिन वहीं अगर 154 का चेक कर रहे हो तो नहीं आएगा. बोलोगे सर वही तो नंबर लिए, बस डिजिट्स आगे पीछे करती है. नहीं, डिजिट्स आगे पीछे करने से मेरा नंबर्स चेंज हो जा रहा है. 145 एंड 154 आर नॉट इक्वल. 145 का अगर हम हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकाल करके सम कर रहे हैं तो 145 मिल रहा है. लेकिन वही 154 का अगर हम डिजिट्स निकाल रहे हैं तो उसका भी फैक्टोरियल निकाल के सम करेंगे तो 145 ही निकलेगा. तो 145 और 154 सेम नहीं है. ठीक है. सिमिलर टू दैट वी हैव डक नंबर, जहाँ पे बोला जाता है कि एक नंबर आप इनपुट करो जिसमें एटलीस्ट एक जीरो होना चाहिए, बट दैट जीरो शुड नॉट बी एट द बिगिनिंग ऑफ द नंबर. द नंबर शुड नॉट स्टार्ट विद द जीरो. जीरो इन बिटवीन कहीं हो, लास्ट में कहीं हो, चलेगा. मतलब यूनिट्स प्लेस पे हो, टेंस प्लेस पे हो, हंड्रेड्स प्लेस पे हो. लेकिन जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो बिट वैल्यू है, अगर आप 3 डिजिट नंबर ले रहे हो तो हंड्रेड्स प्लेस पे नहीं होगा. अगर आप 5 डिजिट नंबर ले रहे हो तो 10,000 प्लेस पे नहीं होगा, एंड सो ऑन. ठीक है. ऐसे करके नियॉन नंबर है, मैजिक नंबर है. सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आर अवेलेबल. प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. देयर वोंट बी टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बट अगर कहीं किसी भी टाइप के नंबर्स पे आप फंसते हो, डू शेयर विथ अस. हम लोग ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी जैसा भी रहे उसमें हम लोग करते रहे. सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर टू बी प्रैक्टिस, और ये सब बहुत बेसिक लेवल के हैं. ओके, द आइडिया इज दैट वी हैव टू मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पहुंचा है. द प्योर जावा कंपोनेंट्स हैव नॉट बीन रीच्ड टिल नाउ. ठीक है. So this is one example that we have discussed. Now, moving ahead, I think in the previous class we also started the concept of function. फंक्शन का डेफिनेशन बताए थे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना था हम लोगों को. uh, इसको क्लियर करते हैं. ओके. फंक्शन का एक और नाम है मेथड. हम लोग फंक्शन मेथड्स के डेफिनेशन लास्ट क्लास में देखे हैं.
वाई डू वी नीड फंक्शन? अपने प्रोग्राम को एक लार्जर या लॉन्गर प्रोग्राम को हम लोग उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांटना चाहते हैं, ताकि कंपोनेंट्स का रीडेबिलिटी आसान हो. Readability not only from the writer's perspective but for the कंपाइलर ऑल्सो. उसके लिए हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट सेग्रीगेटेड सेगमेंटेड रहता है, तो उसको आसान है डिकम्पोज करने में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में. सेकेंड थिंग, फंक्शनैलिटीज अगर हमारे पास बहुत सारा है तो लिमिट उसमें से स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज से काम करने के लिए हम फंक्शंस ले लेते हैं. अदरवाइज वो सीक्वेंस में सारा ऑपरेट और एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है. थर्ड थिंग, कोड रीयूजेबिलिटी भी इसमें से आता है. वो आगे फंक्शन ओवरलोडिंग पहुंचेंगे तो वहां पे दिखाई देगा. आप सर्टेन स्पेसिफिक कोड्स को आप रीयूज कर सकते हो, उसके अंदर के कुछ पैरामीटर्स को चेंज करके, कुछ वैल्यूज को चेंज करके. बट अगर एक जैसा ही इवेल्युएशन है तो आप वहां उस कोड को रीयूज कर लोगे. इसका एक परफेक्ट एग्जांपल बताते हैं. आप अपने घर का रूम्स देखो या अपने ऑफिस का बिल्डिंग देखो. ऑफिस में चलो स्कूल का एग्जांपल लेते हैं. स्कूल के किसी एक फ्लोर को आप इमेजिन करो. एक फ्लोर पे हो सकता है आपके पास स्टाफ रूम हो, अ, उसी फ्लोर पे लाइन से 8 क्लासरूम्स होंगे. उन 8 क्लासरूम का साइज जो है आपके स्टाफ रूम से डिफरेंट होगा डेफिनेटली. स्टाफ रूम उतना बड़ा मे बी हमें नहीं चाहिए जितना बड़ा एक क्लासरूम चाहिए, या एक सबसे छोटे क्लासरूम से बड़ा ही हमको एक स्टाफ रूम चाहिए होगा. क्लासरूम भी डिफरेंट साइज के होंगे, हो सकता है, isn't it? किसी में कम बच्चे होंगे तो साइज छोटा होगा, किसी में बच्चे ज्यादा हैं तो उसके हिसाब से बनाया गया होगा. उसी फ्लोर पे अगर एक छोटा सा ऑडिटोरियम जैसा भी बना है या सेमिनार हॉल जैसा बना है जिसपे बहुत सारे बच्चे बैठ सकते हैं, जहाँ पे हम लेट्स से प्री बोर्ड का या बोर्ड लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं, अराउंड 150-200 बच्चे बैठ सकते हैं, तो उस रूम का डायमेंशन एज कम्पेयर टू अदर क्लासरूम दे वुड डेफिनेटली बी डिफरेंट. अब लोग डायमेंशन ये एरिया निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, लोग लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं, है ना. लेंथ इनटू ब्रेड्थ या स्क्वायर इनटू साइड इनटू साइड. स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड. यूजुअली लेंथ इनटू ब्रेड्थ हम लोग निकाल लेते हैं बिकॉज एक स्क्वायर शेप का रूम हमें मिलना मुश्किल हो जाता है. इसमें कॉमन क्या है, अगर हम अक्रॉस द कॉरिडोर देख रहे हैं, अक्रॉस द फ्लोर देख रहे हैं, हर क्लासरूम का विड्थ तो सेम रहने वाला है, इजंट इट? हर क्लासरूम का विड्थ तो सेम रहने वाला. आप एक कॉरिडोर में देखते हो नजर उठा करके तो सारे क्लासरूम एक यूनिफॉर्मिटी वॉल से दिखाई देते हैं, अलाइंड. एक साइड तो चलो अलाइंड है, अंदर में क्या फर्क है, हो सकता है एक क्लासरूम लेंथ वाइज बड़ा हो, दूसरा क्लासरूम लेंथ वाइज छोटा हो. आप दोनों डायमेंशन को चेंज नहीं करते हो, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना. आपको कॉरिडोर एक पैसेज जो है एक सेम साइज का, इक्विवेलेंट साइज का रखना है थ्रू आउट, स्टार्ट से लेके एंड तक. देखने में भी डिसेंट लगे, प्रैक्टिकली साउंड, प्रैक्टिकल पर्पज से ठीक है, सेफ्टी पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है. आई नीड टू गिव some ample amount of space to my corridor and that has to be equivalent or uniform across the corridor. तो हम अपना विड्थ तो चेंज नहीं कर सकते हैं, कमरे का चौड़ाई चेंज नहीं कर सकते. व्हाट कैन आई मेक एज चेंज इज द लेंथ ऑफ द रूम, इजंट इट? स्टाफ रूम में तो उसका लेंथ थोड़ा कम हो कंपेरेटिवली. स्टूडेंट जिसमें कम स्टूडेंट बैठ रहे हैं उस क्लासरूम का भी लेंथ कम होगा. बट एक सेमिनार हॉल जैसा क्लासरूम अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे 150-200 बच्चे बैठ सकते हैं, तो वहां पे उस रूम का डायमेंशन ओनली एक पार्ट जो है वो तो ज्यादा होगा ही होगा. ठीक है. तो दिस इज हाउ, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जब हर रूम का एरिया कैलकुलेट करने जाएंगे, हमको पता है कि हर रूम का एक पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है. दिस इज द विड्थ पार्ट. द ओनली पैरामीटर दैट इज बीइंग चेंज इज द लेंथ पार्ट. तो व्हाई शुड आई यूज एवरी टाइम टेक इनपुट? हर रूम में जाके हम उसका विड्थ कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे. हमने एक रूम का विड्थ निकाल लिया, हमें पता है कि हर रूम का विड्थ चौड़ाई उतना ही रहने वाला है. तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने सबसे पहले रूम का जो विड्थ निकाला
हम लोग उसी वैल्यू को याद करके मेमोराइज करके चल रहे हैं या उसको बार बार रीयूज करते जा रहे हैं। ओनली द लेंथ इज बीइंग कैलकुलेटेड, ओनली द लेंथ इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, कोड रीयूजेबिलिटी है, वैल्यू को हम रीयूज कर रहे हैं। ये तो सबसे बेसिक एक लेम एग्जांपल हम लोग दे पाए हैं जो कि समझ में आ पाया हो। बट ऐसे करके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग बना सकते हैं जहाँ पे कोड को रीयूज किया जा सकता है, कोड को या इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? क्लियर है सर। ओके, ना फंक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताते हैं फंक्शन हमें दो तरह का मिलता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड प्री डिफाइंड फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन तो हम लोग एक एग्जांपल लेके मैथ डॉट पीओडब्ल्यू यूज कर रहे थे। हमें जो यहाँ पे सीखना है दैट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन अब क्या है, ऐसा फंक्शन जिसका नाम और जिसका काम दोनों ही यूजर डिफाइन करेगा। हम अपने फंक्शन का नाम स्कूल लिख दे, अम्ब्रेला लिख दे, कंप्यूटर लिख दे, अपना नाम लिख दे, perfectly all right, because these words are not the keywords that have been reserved by the language. ठीक है, हम अपने प्रोग्राम का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ये फ्रीडम हमको एटलीस्ट मिला। So I can use an identifier for naming my function name. Also, जब हम फंक्शन बना रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो चार में से कोई एक तरह का मिलेगा हमें, वो चार में से कोई एक तरह का मिलेगा। पहला जो है विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर्स। सेकेंड वैरायटी जो हमें मिलेगा दैट इज विदाउट, शॉर्ट में लिखते हैं रिटर्न टाइप, लिख देते हैं विथ पैरामीटर्स। थर्ड वन इज अ कॉम्बिनेशन विथ रिटर्न टाइप, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। With return type without parameters or parameter. Last one is a combination of third and second with return type with parameters. Okay, चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमारे पास। विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर्स, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा। विदाउट रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर्स, with return type without parameters and with return type with parameters। ठीक है, ये एटलीस्ट आपको चार नोमेनक्लेचर जो है वो याद रखना पड़ेगा। अब पहला वाला क्या बोल रहा है, तो विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। अब ये रिटर्न टाइप और पैरामीटर क्या होते हैं?
ठीक है। इफ यू लुक एट दिस लाइन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, स्ट्रिंग ARGS समथिंग लाइक दैट। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है, इसमें 4 पैरामीटर्स है, चार चार कंपोनेंट्स है टू बी प्रिसाइज। पब्लिक is known as the access specifier। ठीक है, पब्लिक जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड नो एक्सेस स्पेसिफायर, या फिर डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जिसको लोग बोलते हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, नो एक्सेस स्पेसिफायर। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, एज कंपेयर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां पे हमारे पास डेटा को लेके रेस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ करता था, जावा एंड उससे previously built language like C++, they introduced this concept जहां पे हम लोग डेटा का फ्लो पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। See, because in a program I might be using n number of classes, inside each classes I might be using n number of functions, और इन functions या इन classes के बीच में हम अगर अपने वेरिएबल को फ्लो कराते हैं, तो देयर इज अ हाई रिस्क कि वो वैल्यू जो है अपडेट होता चला जाए हर बार। ठीक है, अपडेट होता चला जाए हर बार, और ठीक है, और उसके चलते उसका वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाए। तो इस चीज को बचाने के लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। अगर आप प्राइवेट यूज कर दिए हो तो हाईएस्ट लेवल का आप वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हो ना, उस वैल्यू को अब आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अक्रॉस द फंक्शन हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो यूज नहीं हो पाएगा, एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। इट्स लाइक पब्लिक क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जैसा। आप बाहर खड़े होते हो, एक ऑटो ट्रेवल करके घूमते हुए जा रहा है, आप हाथ दिखाते हो, रुकता है, आप बैठ जाते हो, चले जाते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। प्राइवेट पे आते हैं तो तुम्हारा घर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हो, जो नोन पर्सनैलिटीज है, नोन पर्सन है, उनको ही सिर्फ अंदर आने की अनुमति है, बाकी लोग नहीं आ पाते। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड क्या है, अगेन लाइटर वर्जन ऑफ प्राइवेट लिस्ट से, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस तो लगा हुआ है, लेकिन आप जैसे अपने घर में अपने फ्रेंड को बुला सकते हो। योर हाउस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट स्टिल आपके फ्रेंड को परमिशन है आने का, बिकॉज द मेंबर्स नो कि ओके ही और शी इज अ सेफ पर्सन, घर के लोगों के जैसा ही है, आने की अनुमति है। ओके, सो पब्लिक, प्राइवेट, प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टेड। हमको अगर अक्रॉस द क्लासेस अगर वैल्यूज पास कराने हैं, ट्रांसमिट कराना है, तो हम वहां पे प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू या सर्टेन रूल्स के थ्रू वो पास हो जाएगा। लेकिन हम प्राइवेट डाल देते हैं तो प्राइवेट में कोई एक्सेसिबिलिटी का स्कोप नहीं बचता हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। नाउ पब्लिक हो गया स्टैटिक। स्टैटिक इज द एक्सेस मॉडिफायर। पहला था एक्सेस स्पेसिफायर, दूसरा होता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या बोल रहा है हम लोगों को, एक्सेस मॉडिफायर हमें दो तरह का मिलता है, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक जो है बोल रहा है कि
आप अपने फंक्शन को अगर स्टैटिक बना रहे हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड करके अगर लिखते हो, स्टैटिक कीवर्ड अगर आपने यूज कर लिया है, तो वहां पे आपका जो फंक्शन है उसको आप आगे क्लास एंड क्लास के बियॉन्ड पास डाउन नहीं कर सकते हो जब तक कि उसका ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए। अगर वहीं पे हम अपने फंक्शन को नॉन स्टैटिक बना दें, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड आई राइट पब्लिक वॉइड स्टैटिक वर्ड ही हम हटा देते हैं, तो क्या होगा हमारे साथ, वहां पे उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं रहेगा, हम ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड भी काम कर सकते हैं। ठीक है, लेटर स्टेज में हम लोग देखेंगे स्टैटिक हटाना रखने में क्या फर्क आता है, कहाँ कहाँ पे ये इससे बेनिफिट्स और इसका डिमेरिट्स क्या है, वो सब चीज हम लोग आगे देख लेंगे। तो पब्लिक हो गया एक्सेस स्पेसिफायर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेन मेथड के अंदर, तो इट हैज टू ऑलवेज बी पब्लिक। आप मेन मेथड को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, तो गलत चल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्या हमारे पास है, वॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पावरफुल टूल है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड इज द रिटर्न टाइप, void is the return type। अगर हम किसी फंक्शन के साथ लिख दिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड फंक्शन नेम, लेट्स से एबीसीडी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसका मतलब है वो फंक्शन अपना काम पूरा करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, वॉइड कीवर्ड के बारे में क्या बोल रहा है कि अगर हम वॉइड लगा दिए हैं तो वो फंक्शन कोई भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब इसके बदले और क्या लिख सकते थे, वॉइड के बदले आई कुड हैव रिटन पब्लिक स्टैटिक इंट, कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप वहां पे लिख दो, एक्सेप्टेबल है। उसका मीनिंग क्या होगा, लेट्स से आई हैव रिटन पब्लिक स्टैटिक इंट डेमो, मेरा क्लास का नाम डेमो है, सॉरी फंक्शन का नाम डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डेमो या इंट डेमो ले लेते हैं। इसका मतलब है कि ये फंक्शन डेमो जो है, ये अपना पूरा काम कंप्लीट करने के बाद लास्ट में, सबसे लास्ट लाइन में एक डेमो नाम का फंक्शन के लिए एक वैल्यू जनरेट करेगा, और उसी टाइप पे जनरेट करेगा जो डेटा टाइप वहां लिखा हुआ है। अगर डबल डेटा टाइप लिखा हो तो डबल टाइप का वैल्यू उसको पास डाउन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड तक? Anyone having any doubt, feel free to ask. Shall we move ahead? No doubt, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द पैरामीटर्स, जो ब्रैकेट के अंदर हमें दिखाई देता है। हम लोग ऊपर में भी लिखे थे स्कैनर ओ बी इक्वल्स न्यू स्कैनर, उसके अंदर भी सिस्टम डॉट इन करके लिखे थे नाउ पैरामीटर्स के अंदर क्या जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के अंदर आप कोई भी वैल्यू या वैल्यू का वेरिएबल को पास कर सकते हैं। ओके, तो पैरामीटर्स हमारे पास क्या है, कोई भी टाइप का हम न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक
कोई एक डेटा टाइप के पर्सपेक्टिव से एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स कुड बी पास्ड। किसको पास करते हैं? तो अपने फंक्शन को हम लोग पास करते हैं। यहाँ पे दो टर्म निकल करके आता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, या पैरामीटराइज फंक्शन एंड नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। तो वही विद पैरामीटर विदाउट पैरामीटर में से हमारा क्लास निकल करके, सॉरी, उसका डेफिनेशन निकल करके आएगा। नाउ हैविंग सेड दैट दीज थिंग्स आर डन, नाउ अगर हमको एक इनपुट फंक्शन लेना है, हमको तीन काम करना रहता है: इनपुट, प्रोसेस एंड डिस्प्ले। ठीक है, एक प्रोग्राम बना रहे, इमेजिन करते हैं, जहाँ पे हम यूजर से उसका 3 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करवा रहे हैं। तो द यूजर विल इनपुट 3 मार्क्स। उसी मार्क्स को हम पास डाउन करेंगे एक और फंक्शन को, जिसका नाम होगा कंप्यूट, जो कि कंप्यूट कर रहा होगा उसका टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स। और जो भी रिजल्ट आया होगा उसका टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स और रिजल्ट जो होगा, उसको मेरा तीसरा फंक्शन डिस्प्ले नाम से जो होगा वो डिस्प्ले करेगा। काम वही किए जो हम लोग आई थिंक सेकेंड या थर्ड क्लास में किए थे। 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट का मार्क्स को इनपुट कराए, टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स निकाल के दे दिए। So let's go down to the coding part, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिकम्पोज करेंगे 3 पार्ट में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में ही सरल सा, आसान सा रखने की कोशिश करते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये 3 में हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं जहाँ पे पहला जो हमारे पास है विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर्स, वैसा एक प्रोग्राम हम बना करके पहले दिखा देते हैं। तो हम इसमें इंपोर्ट अभी नहीं लेते हैं, हम अपने से दे देते, ताकि कॉन्सेप्ट जो वो समझ में है पहले हमें। तो द क्वेश्चन इज विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे? सिंपल सा मेन मेथड के अंदर हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन नेम लेट से हम ले लेते हैं सम। हमने 3 नंबर के दो नंबर के एडिशन निकाल के प्रिंट करना चाहते हैं, सम 2 नंबर, सिंपल सा। ओके, सो आई सिंपली कॉल द फंक्शन नेम सम, सेमीकोलन। तो फंक्शन के साथ 3 काम होता है। ठीक है, फंक्शन के साथ 3 काम होता है। फर्स्ट वन इज, फंक्शन का हम प्रोटोटाइप या बॉडी बनाते हैं। फंक्शन को कॉल करते हैं, और जब कॉल करते हैं तो वो इवेल्युएट होता है। ठीक है, सम नाम से एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करें, तो दिस इज नोन एज फंक्शन कॉल। आप जब सिर्फ फंक्शन का नाम लिख करके, और अगर वो पैरामीटराइज फंक्शन है तो पैरामीटर्स भी अगर लगा करके उसको सेमीकोलन से एंड करते हो, ठीक है, तो हमारा फंक्शन कॉल कहलाता है। हियर आई एम कॉलिंग ए सम फंक्शन, सम आ जाओ भाई, काम कर दो। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, ना तो हम सम का पैरेंथेसिस के अंदर कुछ पैरामीटर्स, कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, ना ही हम कुछ काम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई तुमको करना क्या है। सो आई हैवंट पास्ड एनी वैल्यू टू द फंक्शन। अब इस मेन मेथड से हम बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, क्योंकि विदाउट रिटर्न टाइप है तो यहाँ पे वॉइड लग जाएगा, वॉइड। और फंक्शन का नाम हम लोगों ने लिया है सम, सम। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम। ना, हमको सम कराना तो हमको दो वैल्यू तो चाहिए कम से कम एटलीस्ट। इंट ए कॉमा बी कॉमा सम। सॉरी, सम नेम आई हैव यूज्ड एज अ नेम ऑफ माय क्लास, so I won't use it again। ए बी सी ही लेते हैं। ए का वैल्यू दे देते हैं कुछ हम लोग 19, बी का वैल्यू देते हैं कुछ हम लोग 21, एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, सी इक्वल ए प्लस। अब सिंपल से क्या करेंगे हम लोग? प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। एक सेकेंड,
ये वाला प्रिंट सम ऑफ टू वैल्यूज इज इक्वल टू प्लस सम, सॉरी वेरिएबल नेम इज सी सी। Just hold on. ओके ठीक है, इसको रन करके पहले देख लेते हैं, फिर इस पे और डिस्कशन कर लेंगे। सम इक्वल टू 40 दे दिया, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज कि थोड़ा ध्यान से देखना स्क्रीन की तरफ। हमारा हमेशा पहले जो लाइन ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट होगा दैट विल ऑलवेज बी अ मेन मेथड। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ आप पहले मेन मेथड लिखो या पहले अपना नया फंक्शन डिफाइन कर लो, जावा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया। हाँ सी प्लस प्लस में रिस्ट्रिक्शन था, उसमें रिस्ट्रिक्शन था, बट जावा में कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। आप किसी भी फंक्शन को पहले लिख दो, किसी ऑर्डर में लिख दो, हमारा एग्जीक्यूशन जो है हमेशा मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा। द रूल विल बी स्टैटिक। मेन मेथड के अंदर आए तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन कॉल दिखाई दिया सम, ठीक है। नाउ पूरे प्रोग्राम में कंपाइलर खोज रहा है इस नाम का फंक्शन कहीं डिफाइन किया हुआ है या नहीं। तो उसको रियलाइज हुआ कि ओके लाइन नंबर 21 में हमको सम फंक्शन दिखाई दिया। नाउ ये मैच कैसे करता है? मेयरली द मैचिंग ऑफ नेम इज नॉट सफिशिएंट है ना, ठीक है, सिर्फ नाम मैच करने से नहीं हो पाएगा। नाम मैच किया, सम सम मैच कर लिया, पैरामीटर लिस्ट मैच किया, हाँ हम जब फंक्शन को कॉल किए तो उसमें पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी था, रिसीविंग में भी पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी होना चाहिए था। इतना चीज मैच किया, ठीक है। इतना चीज अगर मैच कर गया है तभी ये जंप करता है। कंट्रोल जो है इस मेन मेथड के सम लाइन से जंप करने के बाद इस लाइन नंबर 21 में आएगा। ये जंप करने का मतलब क्या है कि मेरा मेन मेथड अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, ठीक है, वो पार्शियली एग्जीक्यूट होकर के अपने आप से बाहर आ गया, कंट्रोल को बाहर लेकर के आ गया है, बिकॉज जंप करना पड़ा हमको, फंक्शन के बॉडी में आना पड़ा। फंक्शन के बॉडी के अंदर आते हैं वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ, मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन किए हैं या इनपुट कराते तो उस तरह से मेमोरी में एलोकेट हो जाता। इवेल्युएट करता सम और उसको प्रिंट कर देता यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये काम पूरा कंप्लीट किया, सम मेथड कंप्लीट करके प्रिंट करने के बाद जब लास्ट में टर्मिनेट हुआ तो कंट्रोल वापस से वहां चला गया जहां से आया था। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, कंट्रोल फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो वापस से मेन मेथड के अंदर आया ना, सम फंक्शन का कॉल के बाद मेन मेथड के अंदर और कोई काम बचा हुआ नहीं, तो वो भी टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम अपने आप में कंप्लीट हो गया, एंड हो गया। अब अगर यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन ले लें, प्रिंट एलन यहाँ पे होगा, बाय बाय प्रिंट एलन, राइट। अब इसको हम रन करें दोबारा, देखते हैं क्या होता है। तो सी, पहले मेरा जो फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, वो एग्जीक्यूट हो गया। वापस से जब हम गए तो फिर जो बचा हुआ लाइंस बाकी था मेन मेथड का वो एग्जीक्यूट हो गया। तो दिस इज हाउ द कंट्रोल इज बीइंग फ्लोइंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कोड टू अनदर पार्ट ऑफ द फंक्शन, और वो वापस से काम कंप्लीट करने के बाद रिवर्ट बैक करके लौटा देता है फंक्शंस को, कंट्रोल मेन मेथड को। मेन मेथड फिर अपना जो बचा कुचा काम कुछ भी है, चाहे प्रिंटेबल हो या कैलकुलेटिव काम हो, सबको वहां पे कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कौन सा, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर। अब इसी में हम लोग देख रहे हैं
विदाउट रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, सेकंड वाला करते हैं। सेम प्रोग्राम हम यूज करते हैं, तो पहले उसको शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ the first one, that is without return type, without parameter. ना सेम प्रोग्राम हम लोग फिर से बनाएंगे, सेकंड पार्ट लेके विदाउट रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। तो विथ पैरामीटर बोल रहा है, हाँ। इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि हम पहले इनपुट करवाएंगे मेन मेथड के अंदर, इनपुट करने के बाद जब फंक्शन कॉल करेंगे तो उसको हम दे देंगे वो वैल्यूज। इट्स लाइक कि ऐसी दो सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं, वेयर इन फर्स्ट सिनेरियो जो अभी हम लोग सॉल्व किए, उसमें आई कॉल वन ऑफ माय फ्रेंड कि हेलो भाई सुनो, डू दिस टास्क। I've just given him the instruction to do the task. I've not given him any monetary value. I have not given him the keys of my car or my bike, or I haven't given him any bill or any list of items. कुछ भी नहीं दिए. I just gave him the instruction, do this thing, and that's it. He is doing that thing. He or she is doing that thing. On the other hand, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ पे let's say I'll prepare a list and I'll pass down that list to my function. Okay, take these things and do the task. Based on the input that has been given to the function, he or she or the function will provide, or the operate will operate upon the values, result generate करेगा और उसको प्रिंट करके छोड़ देगा। अभी जो करंट एग्जांपल हम लोग शेयर किए थे, ये वाला जो चल रहा है करंट की, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें तीनों काम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों काम हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हुआ है। नॉट अ सिंगल टास्क इज आउटसाइड द फंक्शन, इजंट इट? तो हमें ये पता चल रहा है जब हमें विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट अगर प्रोग्राम बनाने मिले, तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीनों के तीनों काम मेरे जो है वो कहाँ चले जाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। अब देखते हैं क्या विथ पैरामीटर, तो इसमें हम छोटा सा चेंज कर देंगे। फंक्शन कॉल से पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, तो इन्हीं वेरिएबल्स को ले चलते हैं यहाँ पे, इंट एक्स कॉमा वाई सेमीकोलन। दो इनपुट लेना है तो दो ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स 13, y इक्वल्स 15। ओके, अब क्या करेंगे, सम फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं इसको हम ना वैल्यू पास कर देंगे, भाई एक्स और वाई का वैल्यू ले जाओ। ओके, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। फिर से कंपाइलर रीड किया फंक्शन कॉल को, खोज रहा है इस नाम का फंक्शन कहीं बना हुआ है, तो हाँ उसको लाइन नंबर 24 में दिखाई दिया सम नाम का फंक्शन बना हुआ है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, 21 और 24 में अगर कंपेयर कर रहे हैं, जब हम फंक्शन को कॉल किए थे तो वो पैरामीटराइज फंक्शन था, दो पैरामीटर था उसके पास, लेकिन रिसीविंग में एक भी नहीं है, तो वो टाइप मिसमैच हो गया। इट्स लाइक आई एम थ्रोइंग समथिंग टुवर्ड्स समबडी, so there has to be somebody to catch it, बट यहाँ पे हम थ्रो तो कर दिए, बट कैच करने के लिए वहां पे कोई नहीं है, तो आई नीड टू क्रिएट द टू वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। अगर एक्स वाई इंट टाइप का है तो इंट ए कॉमा इंट बी, यहाँ से हटा देते हैं ए बी। ए और बी का काम यहाँ से हट जाता है, बना लेंगे, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे, हमने इनपुट लिया एक्स और वाई का, है ना। अब चाहे यूजर से लेते हैं या मैनुअली ले लिए हैं, दोनों एक ही बात है। अभी हम एक्स और वाई का इनपुट लिया और एक्स और वाई का वैल्यू को हम पास डाउन किए सम फंक्शन को, ठीक है, सम फंक्शन को कि भाई ये ले जाओ एक्स और वाई का वैल्यू। तो अब क्या हो रहा है, जैसे इस लाइन को रीड किया वो देखा सम नाम का फंक्शन कहीं बना हुआ है, हाँ लाइन नंबर 24 में बना हुआ है, नाम मैच कर गया। नंबर पैरामीटर्स कितने हैं, दो हैं एक्स एंड वाई,
रिसीविंग में भी दो है क्या? हाँ, दो है। अभी भी इनकम्प्लीट है। क्या देख रहा है? एक्स और वाई जिस टाइप का है, इंट टाइप का है, तो क्या रिसीविंग में भी ए और बी इंट टाइप के हैं? यस। ये तीन बात जब मैच किया, फंक्शन का नाम, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स is match किया, only then the value of x is being given to variable a, the value of y is being passed to variable b. So a के पास भी 13 है जो कि x का था, और b के पास 15 है जो कि y का था। दो वैल्यूज तो हमको मिल गए, c वेरिएबल डिक्लेयर किए, a प्लस बी ऐड किए और हम प्रिंट कर दिए। रन करके देखते हैं दोबारा से। कोई डाउट है यहाँ तक में? गो थ्रू इट क्लियरली। कोई कॉन्सेप्ट वाला चीज छूट रहा है? ओके, लेट्स टेक 1 मिनट ब्रेक, उसके बाद दो कॉन्सेप्ट और उसको भी क्लियर करके आज हम लोग क्लास बंद करेंगे। जस्ट टेक 1 मिनट ब्रेक। ओके, सो एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? क्लियर है सर यहाँ तक। ओके, तो अब तक ऐसा है ना कि हम लोग जितना भी प्रोग्राम्स अब तक डिस्कस किए हैं, चाहे आज का स्ट्रॉन्ग एमस्ट्रॉन्ग नंबर हो या रिवर्सिंग हो, फैक्टोरियल हो, या उससे पहले जो भी इफ एल्स वाले प्रोग्राम थे, सारे के सारे को हम लोग इसमें ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, अ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे हम लोग खड़े हैं आज के टाइम पे। फंक्शंस आर द वेरी फाउंडेशनल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम्स। आप चाहे इनबिल्ट फंक्शंस यूज कर रहे होगे, इफ यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स पाइथन, आप अपने लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज कर रहे होगे, या आप जावा या किसी लैंग्वेज में हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली यूजर डिफाइंड फंक्शंस ही बनता है हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में।
So it's very important to have the understanding, and especially the understanding of the four things, वो public static और void का use क्या है, और वो पैरामीटर नॉन पैरामीटर से क्या होने वाला है. ओके, बिकॉज अंदर में क्या है, अंदर में तो हमारा वही इफ एल्स या फॉर लूप वैसा ही कुछ चलेगा, या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इवैल्यूएशन ही कुछ चलेगा. तो वो एक अलग प्रैक्टिस है, और कॉन्सेप्ट्स को लिखना सिंटैक्टिकली वो एक अलग आइडिया है. आपको दो पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा जब आप ऐसे प्रोग्राम की तरफ जा रहे हो. द लॉजिकल एस्पेक्ट, कि जहां पे हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, लेट्स से बोला कि एक सीरीज प्रिंट करने के लिए, या सीरीज का सम प्रिंट करने के लिए, तो वो किस तरह से ऑपरेट होगा, वो एक एनालिटिकल पार्ट है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. वंस यू आर क्लियर विद द एनालिटिकल पार्ट, लॉजिकल पार्ट, डिवाइस पार्ट, तब आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो इनटू योर इफ एल्स फॉर व्हाइल डू व्हाइल, किसी लूप से कैसे इंप्लीमेंट करना है. सो दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट. पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या डिमांड कर रहा है, उसको हमको सॉल्व कैसे करना है. अगर वो मैथ्स से रिलेटेड है, जैसे सीरीज बोल दिया, एक सीरीज एक पैटर्न बोल दिया, तो यू हैव टू हैव द विजन इन योर माइंड के ओके, यहाँ पे ना ये सीक्वेंस का ये रूल निकल करके आ रहा है, इस पैटर्न को निकालने के लिए ये रूल बन रहा है. इफ दैट रूल इज सेटिस्फाइंग द होल लॉजिक, तब आप वहां पे डिसाइड करते हो कि हम इसको फॉर से बनाए, वाइल से बनाए, या लूप के बिना भी हो सकता है. ठीक है, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. छोटे छोटे प्रोग्राम्स को कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, देयर आर सम डेज जब uh, एक दिन अच्छा नहीं जा रहा होता है, और किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया कि सर ये सीरीज एक पैटर्न कैसे बनेगा, और हम लोग एब्सेंट हो जाते हैं वहां पे, कि नहीं डेवलप कर पाया, नहीं जनरेट कर पाया. नेक्स्ट वेरी फ्यू डेज के बाद आप देखते हो उसका बेसिक सही आंसर था, जस्ट उस दिन क्लिक नहीं किया. Sometimes it might happen, but most of the days you have to be ready on your toes कि okay, practice सही हो पाएगा. For that, I'll give you one reason, one example, yeah, one suggestion from my side. Uh, दो चीज आप लोग अपने एजुकेशन करियर के टाइम तक में कर लो. एक, ट्राई टू क्रिएट गिटहब अकाउंट, गिटहब अकाउंट. प्रोजेक्ट place perspective is very important if you are from BCA, MCA या बीटेक डिप्लोमा. बीटेक बीसीए एमसीए में ज्यादा पूछा जाता है. गिटहब अकाउंट एक रिपोजिटरी बनता है वहाँ पे, जहाँ आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को, कोड्स को रख सकते हो, और रियल टाइम पे शेयर करके किसी के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हो. बेसिकली वो एक जगह हुई रिपोजिटरी. यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग कि क्रिएट गिटहब अकाउंट, गिट कमांड कैसे फॉलो करते हैं. सेकेंड थिंग, द लॉजिकल पार्ट और एनालिटिकल पार्ट या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हमारा आता है, uh, वो इन प्रॉब्लम्स से तो एटलीस्ट नहीं हो पाएगा. अगर आप हायर लेवल पे क्लिक करना चाह रहे हो, तो इन प्रॉब्लम्स से तो नहीं ही आएगा. ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस किए आज तक, अभी तक, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट या सिंटैक्स को सीखने, समझने और उस पे कंट्रोल लाने के लिए है. दीज आर वेरी आउटडेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको कहीं और मिलेगा. कहाँ मिलेगा? फॉर न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स यू नीड टू फाइंड आउट वेबसाइट्स लाइक हैकर रैंक, कोड शेफ, राइट. ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस या डोमेन्स है जहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, जो कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये लोग भी यूज करते हैं, या मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज प्लेसमेंट्स के टाइम में. ठीक है, तो आपका अगर कोई ऐसा फोकस, विजन, एम्बिशन कुछ है कि हमको हायर लेवल पे वहां तक पहुंचना है, तो एटलीस्ट ट्राई टू हैव दीज टू थिंग्स इन योर अकाउंट, कि मेरा गिटहब अकाउंट रेडी एंड फुल्ली फंक्शनल है, उसमें रिपोजिटरी में हमने कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ कोड्स डाल रखा है. लर्न टू हाउ टू यूज इट. अगर आप 5-6 प्रोजेक्ट बना लेते हो, 5-6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करते हो, तो कैसे उस पे रखना है प्रोजेक्ट करके, वो सीखने वाली बात है. यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दीज कंटेंट्स आर अवेलेबल. ये सब कैसे क्रिएट होता है. सेकेंड थिंग, गिटहब, सॉरी, कोड शेफ या हैकर रैंक, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स है.
इस पे जाकर के आप अपना रैंकिंग बढ़ा सकते हो। और अगर आप अपने सीवी पे लिख देते हो कि हम हैकर रैंक के 3 स्टार कोडर है, 4 स्टार कोडर है, जो एचआर है वो उस चीज को पढ़ के समझ जाएगा कि आप किस लेवल के परफॉर्मर। देन आपसे वो पूछेगा ही नहीं कि आप जावा में डेफिनेशन बताओ, ये बताओ, वो बताओ, नहीं, वो सीधे आपके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आएगा, उस पर डिस्कस करेगा। सो द इंटरव्यू बिकम्स मच मोर इजियर, एंड आपका वहाँ पे विन विन सिचुएशन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। द रेट ऑफ गेटिंग सिलेक्शन, द chances of getting selected for that interview becomes very high. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। विथ रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर्स। ठीक है, रिटर्न टाइप विथ विदाउट पैरामीटर्स। अब रिटर्न टाइप बोल दिया, रिटर्न टाइप का मतलब क्या, हम वॉइड यूज नहीं कर पाएंगे। आई मस्ट हैव अ रिटर्न वैल्यू। मतलब क्या होगी, एक फंक्शन अपना पूरा काम करने के बाद एक वैल्यू, एग्जैक्टली एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकेगा, उसके पास पावर उतना ही है, उसके पास पावर उतना ही है कि वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है इंस्टेंस ऑफ टाइम पे। उसके पीछे बहुत टेक्निकल रीजन है। जब हम वैल्यू रिटर्न करते हैं, देयर हैज टू बी सम वैल्यू, सम वेरिएबल व्हिच इज गोइंग टू रिसीव दैट वैल्यू। अब बोलोगे सर, जब हम फंक्शन को पैरामीटर्स पास कर रहे थे, तब तो दो वैल्यूज आप दे रहे थे, एक्स वाई दे रहे थे और एक्स वाई रिसीव कर रहा था, लेकिन जब रिटर्न कर रहे हैं तो एक ही वैल्यू क्यों हो रहा है? तो फंक्शन कॉल के थ्रू वैल्यूज देना इज डिफरेंट देन फंक्शन को रिटर्न लिख देना इज डिफरेंट। ठीक है, ओके। तो वापस आते हैं इस प्रोग्राम पे। कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? थर्ड वन इज विथ रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर्स। विथ रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर्स, तो विदाउट पैरामीटर्स का मतलब कि इनपुट यहाँ पे हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम कमेंट लाइन में डाल देते हैं, आगे का यूज आ जाए। ठीक है, पैरामीटर लेस भी एम्प्टी हो जाएगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे बन जाएगा क्या, इंट एस सेमीकोलन एस इक्वल टू सम, और यहीं पे हम प्रिंट कराएंगे हम सम इक्वल टू प्लस एस। ओके, अब क्या है, मेरा प्रिंट जो होगा, आउटपुट जो आएगा, वो मेरे मेन मेथड के अंदर आएगा। आई कैन नॉट प्रिंट द रिजल्ट इन माई यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो यह सबको वॉइड हटाना पड़ेगा। नाउ विच टाइप ऑफ वैल्यू आई एम रिटर्निंग, तो एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। सम है, सम एक इंटीजर वैल्यू होता है यूजुअली, यहाँ से नॉन पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमको इंट सी के साथ ए कॉमा बी कॉमा सी, a equals 15 semicolon, b equals 10 10 semicolon, a plus b। अब इस लाइन को ऐसे हटा देना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दिस what we need to write is return c। Let's run this program, then I'll come back to this। sum equals 25, करेक्ट है, सही काम किया। नाउ अगर आप इस कोड को देख रहे हो, देखो इनपुट और प्रोसेस ये दोनों काम तो हुआ कहाँ पे, मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, लेकिन आउटपुट प्रिंट कहाँ पे कर रहा है, मेन मेथड के अंदर। All these things are being defined by which type of function we are using। ये चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं, वो
वो सारा कुछ डिफाइन कर रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं बोलता है या कहीं पे मेंशन नहीं किसी भी तरह से, आपके पास खुली आजादी है, फुल फ्रीडम है कि आप इन चारों में से कोई एक मेथड से बना लो, विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट। और इन मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द केसेस एक प्रोग्राम इन चारों में से किसी से भी बन सकता है। ओके, इसको भी हम शेयर कर देते हैं। राइट, इसको भी हम तुरंत से शेयर कर दे रहे हैं। तो बस याद रखना आपको कि कौन सा टाइप का प्रोग्राम बन रहा है। अब ये रिटर्न क्या है लास्ट में, जब फंक्शन पूरा काम कंप्लीट कर ले तो वहां पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं कि भाई वैल्यू को वापस ले जाओ जहां से फंक्शन कॉल किया गया था। और उस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज भी है। हाँ, ये रिटर्न सी, ये हमेशा सबसे लास्ट लाइन पे आता है रिटर्न, बिकॉज अगर हम इसको इन बिटवीन कहीं डाल देते रिटर्न सी, तो क्या कहता है, लास्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले ही वापस चला जाता कंट्रोल। तो ऑलवेज हम लोग रिटर्न वाला जो रहता है वैल्यू, उसको सबसे लास्ट के लिए बचा करके रखते हैं, ताकि जब सारा कंप्यूटेशन वाला काम हो जाए, व्हेन आई एम हैविंग द रिजल्ट विथ मी, आई विल रिटर्न द रिजल्ट। जब रिटर्न कर रहे रिजल्ट को, सी इस लाइन पे आ रहा है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, सो देयर हैज टू बी अ वेरिएबल, देयर हैज टू बी अ वेरिएबल जो कि उस वैल्यू को रिसीव कर रहा होगा। फॉर दैट रीजन नाउ सी, इक्वल टू से पहले तो हम एक ही वेरिएबल दे सकते थे, आई कैन नॉट गिव मल्टीपल वेरिएबल्स। Since I can only give one variable before equal to just to have the value, some function जब यहाँ से कॉल हुआ तो इसको समझ में आ गया कि एस वेरिएबल को कि फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन काम करने के बाद एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि मेरे अंदर स्टोर होगा। एंड वी हैव टू एंश्योर दैट द वेरिएबल एस, सॉरी, जो रिसीविंग वेरिएबल है एस इन दिस केस, मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप जो यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं। अब आप रिटर्न करोगे क्या और यहाँ रिसीव कर रहे हो इंट में, नॉट पॉसिबल। मिसमैच ऑफ डेटा टाइप विल जनरेट एन एरर। अभी हम लोग जस्ट दो एक प्रोग्राम पहले ही देखे थे, टाइप कास्टिंग यहाँ पे हमको करना पड़ा था। गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गया हमारा। अब चौथा जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड वन विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। जस्ट टेक 3 मिनट्स और आप इस प्रोग्राम को जो हम लोग बना रहे हैं, सम वाला प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को आप चौथे टेक्निक से कर सकते हो क्या? प्रीतम, इज इट पॉसिबल? आशी? Shall I wait for you all to complete it? सिद्धार्थ, हो पाएगा क्या? ओके, हाँ, अपने साइड से ही कंप्लीट कर देते हैं इसको। चौथा वाला आता है, कॉम्बिनेशन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या करना है हमको, बस हमको इनपुट मेन मेथड के अंदर कराना है और आउटपुट भी मेन मेथड के अंदर जाएगा। सिर्फ प्रोसेसिंग पार्ट जो है वो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर जाएगा। तो चारों बात में एक रिजल्ट बस निकल करके ये आ रहा है कि आप किसी भी तरह का बना रहे हो उसमें एटलीस्ट प्रोसेसिंग जो है, इवेल्युएशन जो है, प्रोसेसिंग पार्ट जो है वो हमेशा यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर ही रहेगा।
बाकी इनपुट और आउटपुट कहाँ जा रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन आप इन चारों में से कौन सा वैरायटी यूज करते हो। ठीक है, तो इसमें चेंजेस क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे इन कमेंट लाइंस को हटा देते हैं। एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू दे दिए हैं, इंट एस एस इक्वल टू सम, फिर हम लोग वैल्यू पास कर देंगे एक्स कॉमा वाई। ठीक है, नाउ आई एम पासिंग द पैरामीटर्स आल्सो, एंड इन रिस्पॉन्स ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि एस में आएगा और वो आउटपुट प्रिंट कर देगा। तो हम रिसीविंग के लिए भी यहाँ पे ले लेते हैं इन ए कॉमा इन बी, ए और बी का नाम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, छोटा सा चेंजेस यहाँ पे करते हैं। ए बी का वैल्यू आ गया यहाँ पे, सॉरी ए बी का वैल्यू नहीं चाहिए, हम पहले से दिया हुआ है सी इक्वल्स ए प्लस बी एंड रिटर्न। चलो रन करके देखते हैं। ठीक है, आउटपुट अभी भी सही दे रहा है, 15 और 13 वैल्यू हम इनपुट कराए थे, सम इक्वल्स टू 28। This is the fourth way. ठीक है, fourth one is also shared. So this is all about the concept of function and different types through which we can use functions, right? Kindly go through all the 4 formats because हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस लेकर के अगर बैठेंगे तो वहां पे हम सिर्फ क्वेश्चन से हमको पकड़ना पड़ेगा कि हमारा प्रोग्राम जो इन चारों में से कौन सा मेथड से बन रहा है। अगेन इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड कि हमें क्वेश्चन से कैसे डिटेक्ट करना है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट टू डिटेक्ट कि हाँ क्वेश्चन में ये डिमांड किया तो इसके बेसिस पे इन चारों में से सेकेंड वाला फॉर्मेट से बनेगा, थर्ड फॉर्मेट से बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं किया जाता है विथ रिटर्न टाइप। जो 4 मेथड हम यहाँ लिख दिए, 4 टेक्निक, ये इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको फंक्शन का नाम दिया होगा और या तो पैरामीटर लिस्ट होगा या रिटर्न टाइप होगा, उसके बेसिस पे ही इवेलुएट करना पड़ेगा। So it's not that much complicated. It needs a little bit of practice. Secondly, once this part is done, हम लोग इसका एक important aspect पे next class move करेंगे, that is function overloading and overriding। और यहाँ से हमारा जो है oops का concept जो है निकल करके आने वाला है, और उसके बाद फिर हम लोग उसी क्लास में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। द जावा एस्पेक्ट जो हमारा है वो स्टार्ट होने वाला है। सो नॉट मच टाइम इज लेफ्ट विथ यू गाइस, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उसको क्विकली फॉलो अप कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास से इन एवरी क्लास वी बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स मस्ट बी ऑन द सेम पेजेस। ठीक है, ऐसे ही 2-3 क्लास या ऑलमोस्ट लास्ट वीक तो हम एब्सेंट ही थे, तो बहुत सारे क्लासेस मिस आउट हो गए, हम लोग थोड़ा डिले चले गए हैं, बट एटलीस्ट यू माइट हैव गॉट सम अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस एट दिस पेपर। ठीक है, सो प्रिपेयर वेल, इफ पॉसिबल कल क्लास रह पाया तो ठीक है, अदरवाइज मंडे से हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे। एनी डाउट्स प्रीतम, सिद्धार्थ, एनीवन?